So we will continue the same video here. So I am talking about deer. Deer eats grass. Grass is a food of deer and it is developed or it comes with the help of sunlight. ग्रास कैसे बढ़ती है या कैसे उगती है? पेड़ पौधे इनको उगने में बढ़ने में कौन मदद करता है? सनलाइट की वजह से. उसको कौन खाता है? डियर. डियर को कौन खाता है? टाइगर. इट इज़ ऑल्सो वन फूड चेन. द पिक्चर बिलो शोज अनदर फूड चेन. You have to guess the missing link in it. Look at the first and the third picture. Think of its connection between them and complete the chain. नीचे एक और पिक्चर दिया है, उसमें आपको मिसिंग लिंक जो है, जो बीच में जो पिक्चर मिसिंग है वो आपको फाइंड आउट करना है कि क्या हो सकता है वो. ओके, वी विल गो फर्दर. हियर वन मोर फूड चेन इज देयर. ग्रास, सन, ग्रास, रैबिट एंड स्नेक. सन की वजह से ग्रास बढ़ती है. ग्रास को कौन खाता है? रैबिट खाता है. रैबिट को कौन खाता है? स्नेक. दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ फूड चेन. द फूड वेब. ऑब्जर्व द वेरियस फूड चेन्स शोन इन द पिक्चर बिलो. फाइंड द डिफरेंट फूड चेन्स ऑफ विच द वर्म एंड द माउस फ्रॉम अ लिंक. One living thing can be a part of a number of food chains. That gives rise to the food web in nature. Means एक living thing से कई सारे food chains बन सकते हैं. They may be part of many more than one food chains. So it will lead to make a food web. Okay. So this is called a food web. You can guess in this picture. From one living thing is connected with many food chains. So now next point is the most important food in food chains, plant. ज़्यादातर फूड चेन्स में सबसे मेन फूड एज कंसिडर कौन सा किया गया है? प्लांट्स. Every living thing gets its food from the environment. Many animals in the environment eat only plants. ज़्यादातर सारे लिविंग थिंग्स को अपना खाना कहाँ से मिलता है? एनवायरनमेंट से. और एनवायरनमेंट में जितने भी एनिमल्स हैं उसमें से ज़्यादातर एनिमल्स क्या खाते हैं? प्लांट्स. मीन्स हरी घास, हरे पत्ते वो खाते हैं. अदर एनिमल्स ईट दैट एनिमल. फॉर एग्जाम्पल अगर डियर ग्रास खाता है, पेड़ पौधे खाता है, तो टाइगर किसको खाएगा? टाइगर डियर को खाता है. अदर एनिमल ईट द animals that live on plants. But plants make their own food in the presence of sunlight. Plants अपना खाना कैसे बनाते हैं? वो अपना खाना खुद से बनाते हैं in presence of sunlight, with the use of sunlight. Using water and carbon dioxide from the air. इसके लिए वो एयर में से वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्सॉर्ब कर सकते हैं. It takes water and carbon dioxide from air and water with the help of their roots. It means that plants are the main support of every food chain. Means plant is a main part of food chain. They are acting or performing a role of a main support in every food chain, because the animals which are living on the plants, which are eating only plants, they are eaten by the other animals. So the plants are the main part of food chain. Here you can see a picture of plant. It makes their food with the help of sunlight, carbon dioxide and water, and they release oxygen which are helpful for our breathing process. Here you can see the picture of food web. One animal is related to many food chains. It makes or it leads to formation of food web. Now the last point in this lesson is environmental balance. There are many food chains in our environment.
Because of these food chains, every living thing gets the food it needs and therefore continues to live. इन फूड चेन्स की वजह से कई सारे इस एनवायरनमेंट में कई सारे फूड चेन्स हैं एंड इसी फूड चेन्स की वजह से कई सारे लिविंग थिंग्स जो है उनको अपना खाना मिलता है एंड देयरफॉर कंटिन्यूज टू लिव, और इसी वजह से वो लाइफ में सरवाइव कर पाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल हेल्प द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट रेसिड्यू, डेड एनिमल्स, एक्सक्रीटा एक्सेट्रा। अगर कोई प्लांट्स के रेसिड्यूज है, पार्ट्स है, डेड एनिमल्स है, उनको डिकम्पोज करने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें हेल्प करते हैं। एज अ रिजल्ट substances that help the growth of plant are formed and get added to the soil, और इसी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ होने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो सब्सटेंस चाहिए, वो हमें मिल जाते हैं और वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और इसी वजह से इट इज़ यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। सो प्लांट्स can absorb this substance through their roots from the soil. Plants use them for their growth. Thus, plants use substances in soil for their growth, and when the plants and animals die, the decomposition there remains add these substances to the soil once again. जब plants ये substances, ये nutrients soil से absorb करते हैं, इट विल हेल्प फॉर देयर ग्रोथ। लेकिन जब इसी प्लांट की डेथ हो जाती है, यह प्लांट गिर जाता है, तो इसी प्लांट की माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन प्रोसेस के थ्रू वापस ये सारे सब्सटेंस सॉइल में ऐड हो जाते हैं। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट साइकिल इन द एनवायरनमेंट। ये भी एनवायरनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट साइकिल है। लिविंग थिंग्स यूज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर फॉर ब्रीदिंग, और इन्हीं प्लांट्स से जो ऑक्सीजन रिलीज होता है उसी ऑक्सीजन को सारे लिविंग थिंग्स दे आर यूजिंग फॉर देयर लिविंग पर्पस थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग के वक्त सारे लिविंग थिंग्स ये ऑक्सीजन जो है वो लेकर दे आर यूजफुल फॉर दिस ऑक्सीजन यूजफुल फॉर सर्वाइवल पर्पज ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वो सारे लिविंग थिंग्स जो है, चाहे वो एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, दे टेक द ऑक्सीजन एंड दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। प्लांट्स यूज द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर मेकिंग देयर फूड। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स एब्सॉर्ब करते हैं एंड दे यूज दिस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मेकिंग देयर फूड। Oxygen is given out in this process and gets added to the air again. इसी प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट्स के फूड बनाने की प्रोसेस में दे रिलीज ऑक्सीजन एंड इट गेट मिक्स इन द एयर। दिस टू इज अ साइकिल इन नेचर। ये भी नेचर का एक साइकिल ही है। देयर आर सेवरल अदर सच साइकिल्स इन नेचर, thus there is interaction amongst living things. ऐसे ही और भी कई सारे साइकिल्स है जो नेचर में अवेलेबल है, और इन्हीं साइकिल्स की वजह से सारे लिविंग थिंग्स एक दूसरे से इंटरैक्ट है एंड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन नेचर। द इंटरैक्शन goes on continuously. This help to maintain the food chains in the environment. इसी इंटरैक्शन की वजह से, जो इंटरैक्शन लिविंग थिंग्स में है, नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में है, इसी इंटरैक्शन की वजह से जो साइकिल्स है, इट गोज कंटिन्यूसली, इट हैपन्स कंटिन्यूसली एंड इट हेल्प टू मेंटेन द फूड चेन। इसी इंटरैक्शन की वजह से फूड चेन्स जो है वो मेंटेन रहने में मदद मिलती है। When the various cycles in the environment go on, uninterrupted environmental balance get maintained. सारे जो साइकिल्स है एनवायरनमेंट के, जो अगर सही तरीके से चल रहे होते हैं
किसी ने उनमें इंटरफेरेंस नहीं किया होता है तो इट विल हेल्प टू मेंटेन द एनवायरमेंटल बैलेंस। इसी वजह से एनवायरनमेंट का बैलेंस भी सही तरीके से बना रहता है। ऑलवेज रिमेंबर, for the existence of living things it is important that environmental balance is to be maintained। अगर लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहना है, सर्वाइव करना है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द एनवायरमेंटल बैलेंस। उनको एनवायरमेंटल बैलेंस संभाल के रखना होगा, उसमें इंटरफियरेंस नहीं करना होगा। सो लेट्स रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न इन दिस लेसन। There are innumerable types of living things on the earth। इस अर्थ पे कई सारे varieties of animals, plants, birds and insects available हैं। There is a interaction between living and non-living things in the environment। environment में जो भी living things है या non-living things है, इनके बीच में एक तरह का relation है, एक तरह का interaction है। Different kinds of animals, plants and microorganisms are found in different regions of earth। अर्थ पे अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बर्ड्स हमें दिखाई देते हैं। द वाटर साइकिल, वेरियस अदर साइकिल्स एंड फूड चेन्स इन नेचर help to maintain the balance in the environment। This balance has been maintained for thousands of years। ये वाटर साइकिल जो है वो अगर कंटिन्यू रहते हैं तो इनकी वजह से एनवायरमेंटल बैलेंस मेंटेन रहने